Good evening, ladies and gentlemen, and thank you, everybody, for joining in on a Friday evening. In a series of Small Case Connect, happy to present Mr. Rakesh Pujara as a third guest speaker today. And I'm your host, Rakesh. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you, everybody, for joining in on a Friday evening. So I'm your host, Rakesh Rathod. I'm a chartered accountant and a CFP by qualification. Have been in the markets for last 23 years with some of the most reputed names like Sher Khan, Motilal Oswal, Prabhudas Lilladher, and IFL. Been with Small Case for last 3 years, leading the advisory practice, creating access of the best managers to all you retail investors. So in the same chain of thought today, we have with us one of our fastest growing manager, Mr. Rakesh Pujara. Welcome, Rakesh ji. Thank you, Rakesh. Thank you, Rakesh, for having me. Yeah. So just to introduce and just a coincidence, so I call it today's session as Rakesh meeting Rakesh. Of course, there is a big difference between this Rakesh and that Rakesh. So here is a Rakesh Pujara, whom I think a lot of investors worship to live that name of Pujara. And of course, Rakesh Bhai worship the markets a lot. I think all his life, he have been a disciple of his markets. And Rakesh Bhai has experience of over 25 years of trading and investment experience in equity markets. And interestingly, Rakesh Bhai has actually spent major time of his career in a company called Naman Securities, where he started his career but went on to become the CEO of the company, right, over a period of time, where he established lot of trading systems, and he had established the algo trading desk there, which is of course very close to heart and which has been contributing a major portion of the revenue of that company. So inspired by those results, I think Rakesh Bhai thought that it would be best if the same practices can be taken forward in a different format to all the investors at large. And with that thought, he has formed his own company, Compounding Wealth Advisors LLP, which is a SEBI registered investment advisor. And it's in the business of advising clients on generating all weather and absolute alpha, generating risk adjusted returns. And I think to take it to a next level, Rakesh Bhai has taken a very futuristic step of putting his strategies, putting his hard work of last 25 years in form of a very simple to execute portfolios on Small Case platform. And Compounding Wealth has been live on our platform for now over 5 months. And it has been one of our best performing small cases. Of course, the time period is short, but I'm sure Rakesh Bhai will share his experience of his last 25 years, how he has built this system trading and what he believes and why he believes in this trend following concepts, right? So with this, Rakesh Bhai, I will just hand it over to you. Of course, I will be interacting with you wherever I feel retail investors might want to know more. And at the end of that session, we'll be taking Q&A as well. So over to you, Rakesh Bhai. Thank you, Rakesh ji. Thanks for the kind introduction. काफी कुछ मेरे बारे में बता दिया गया है. The whole journey, Rakesh Bhai, started when I realized a lot of people struggle in the market, both in trading and in investments. जो इसमें सक्सेस रेशियो है बहुत कम है. अभी सेबी का डेटा भी आया है कि काफी कम लोग सक्सेस होते हैं, और जो सक्सेस होते हैं उसका जो पे ऑफ है वो बहुत ही हाई है. इसके लिए हमेशा it attracts a very large number of young people in the market every bull cycle, and then eventually only few percentage of the people remain profitable और बाकी सब लॉस करके अपने अपने काम पे लग जाते हैं. सो ये प्रोसेस मैंने ऑन एंड ऑफ 20-25 साल तक देखा कि ये हर साइकिल में ऐसा होता है. नए लोग आते हैं और कुछ लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं और बाकी के लोग अपने हार्ड अर्न मनी को गवा के चले जाते हैं. और मैंने ये भी पाया कि जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो बहुत ही मतलब स्पेशलाइज्ड जर्नी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, पे ऑफ बहुत ज्यादा है, लेकिन सक्सेस होने का चांस भी बहुत कम होता है. तो मैंने सोचा कि क्यों इसको नहीं रूल बेस्ड बनाया जाए, कि भाई जैसे काफी सालों पहले यूएस में भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि भाई अगर रूल बेस्ड किसी ट्रेडर को अगर अपन बिठा दे, रिचर्ड डेनिस एंड विलियम एखार्ड करके, टर्टल ट्रेडर का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है. तो अगर रूल बेस्ड अप्रोच से ट्रेडर को तैयार किया जाए या तो इन्वेस्टर को तैयार किया जाए, तो कोई एक
साधारण आदमी भी इन्वेस्टर बन सकता है। ये ख्याल मेरे जहन में आया 2012-13 में, जब ये सिस्टम ट्रेडिंग का मेरा जर्नी मेरा चालू हुआ। पहले मैंने ट्रेडिंग से चालू किया, फिर इन्वेस्टमेंट चालू किया, और अपना अभी स्मॉल केस पे अपना तो पोर्टफोलियो लाइव है। 22 मार्च 2023 में अपन ने 6 पोर्टफोलियोज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूल्स एंड एल्गोरिदम्स हम लोग ने रखे हुए हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी कुड नॉट हैव टाइम्ड इट बेटर। तो यस, ऑफ कोर्स, बाय थोड़ा लक भी हमारे साथ दिया, और अभी ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो अपना स्मॉल केस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये स्मॉल केस लॉन्च करने के पहले मैंने काफी पापड़ बेले हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 6 महीने का रिजल्ट्स मैंने इधर डाल दिया, ऐसा नहीं है। काफी हम लोग मैंने मेरी लाइफ का पूरा एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने किया, उसका जो निचोड़ है, जहर तो हम लोग ने पी लिया या अमरूद हम लोग ने डाल दिया है बेसिकली। तो ये इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियोज है, उसका परफॉर्मेंस क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि कंप्लीटली रूल बेस्ड है और कंप्लीटली रिस्क डिफाइंड है। और रिस्क डिफाइंड तो नहीं बोल सकते, मतलब अपन बोल सकते हैं कि भाई सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। इसके कारण ये टाइप के रिटर्न आते हैं। और मैं हमेशा रिटर्न की बात अकेले नहीं करता हूँ, रिटर्न के साथ मैं हमेशा रिस्क की भी बात करता हूँ। तो इसका रिस्क रिटर्न रेशियो भी बेटर है। जो हम लोग ने पास डेटा हम लोग ने चेक किया बिफोर रोलिंग आउट इट इन लाइव, तो ये भी काफी बेटर है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये जर्नी कैसे हुआ, कैसे चालू हुआ, और आप लोग को क्या करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन आई एम गोइंग टू गिव अवे वन सच systematic way of investing, absolutely to be can be used from Monday morning itself. This is just for education purpose, this is just for inspiring people कि भाई आप लोग भी ये जर्नी चालू कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ कुछ सिंपल चीजें भी अप्लाई करके हम पैसा बना सकते हैं। तो ये मेरा पूरा एक एफर्ट रहेगा कि अपने जो ऑडियंस है, जो शायद अपना हो सकता है कि स्मॉल के सब्सक्राइब करने का कैपेसिटी भी नहीं रखते हो, तो वो लोग भी खुद कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, रूल बेस्ड है। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, रूल्स में दे दूंगा आपको, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के हिसाब से कोडिंग वगैरह करना है वो आपको करना पड़ेगा, और इसमें भी डिसेंट रिटर्न है। तो एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको पूरा सिस्टम भी समझाऊंगा विथ रूल्स। So, shall we start with the presentation, Rakesh ji? Anything you want to ask? Yeah, perfect. I think you can start, sir, and I will definitely chip in wherever required. हाँ, तो YouTube जो भी व्यूअर्स है वो अपना क्वेश्चंस डालते रहे, विल टेक दोस क्वेश्चंस इन बिटवीन। और मैं हिंदी में काफी बात कर रहा हूँ, तो यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश मिक्स, और जो भी है आप अपना रिस्पॉन्स डालते रहिए, एंड कीप कन्वर्सिंग सो दैट we can catch up to your queries, and we'll answer those as many as possible. So I'll share my presentation. We'll have 15-20 minutes of presentation first, and then we'll go to the system, and then we'll go to the Q&A section. ठीक है? So I'm sharing my screen, sir. Perfect. ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा, सर? Yes, sir. Yes, sir. So आज का हम जो टॉपिक रखे हैं, वो टॉपिक का नाम ही है रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अभी रूल बेस्ड ट्रेडिंग तो काफी सुना था, और काफी लोगों ने देखा भी है कि चलो रूल बेस्ड एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी रूल बेस्ड हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली हो सकता है। और बिलीव मी, इतना सिंपल रूल से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वी कैन एक्चुअली मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ बेस्ट इन द मार्केट, इफ नॉट बेटर, एटलीस्ट मिमिक तो कर ही सकते हैं, और काफी अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। और ये प्रेजेंटेशन का पूरा पर्पस जो है, लोगों को इंस्पायर करना है कि इक्विटी से अच्छा रिटर्न बन सकता है, और आपको भी ऐसा कुछ रूल बेस्ड ट्राई करना चाहिए, ताकि आपका हार्ड अर्न मनी सही जगह पे लगे। मेरे बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफी कुछ आपने बोल दिया है, तो ये स्लाइड हम फटाफट स्क्रॉल कर देंगे। हमारा जो कंपनी कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर है ना, 5.5 year old कंपनी है, इट्स अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एंड हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। और हमारा एफर्ट हमेशा यही रहता है कि क्लाइंट जो रिस्क लेता है मार्केट में, उसके हिसाब से उसको रिटर्न भी आना चाहिए। तो हमेशा मेरा फोकस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे रहता है। मेरा अप्रोच पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स पे है। हम लोग काफी कुछ ऑप्शंस के एरिया में भी ऑप्शन एडवाइजरी वगैरह भी करते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट के जो मेरे प्रोडक्ट्स है, जो पोर्टफोलियोज है, मैंने स्मॉल केस पे लिस्ट किए हुए हैं। तो आप यू कैन विजिट cws.smallcase.com फॉर सीइंग आवर पोर्टफोलियोज एंड सब्सक्राइबिंग देम। मेरा ये मानना है कि अगर इसमें ये गेम में जो इन्वेस्टमेंट का गेम है ना, अगर आपको सिंगल कोई चीज चाहिए ना, तो वही है कि वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन चाहिए। आपका जो नजरिया है
स्टॉक मार्केट को देखने का हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म जायरेशंस में आप ट्रेडिंग करके निकल जाओ। और ये एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट, वो वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट है, और हमेशा जिसके पास लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रहेगा ना, वो उसके पास एज रहेगा, और ये एज आपसे कोई नहीं लेके जा सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेठ क्लारमैन जो बहुत ही बड़े फेमस इन्वेस्टर है उनका कहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कभी कभी लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1929 से 1954 25 साल तक रिटर्न नहीं आया। तो ये बहुत बहुत कभी कभी इक्विटी मार्केट्स ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऊपर नीचे, साइडवेज, कंसोलिडेशन, मल्टी ईयर कंसोलिडेशन, ऐसा काफी कुछ साइकिल से पास होता है, तब जाके रिटर्न आता है। और इन्वेस्टर को ये सब पेन से पास होना पड़ता है। 25 साल हो गया, बाद में वो 1966 1982 में ये पीरियड वापस रिपीट हुआ। 16 साल तक एक भी पैसा नहीं बना इन्वेस्टर का। और ऐसा नहीं है कि भाई तभी जब भी मार्केट नहीं कुछ कर रहा था तभी इकोनॉमी भी कुछ नहीं कर रहा। नहीं नहीं, इकोनॉमी ग्रो कर रहा था। 4.44 से 6.8, मोटा मोटी इकोनॉमी 1.5 टाइम हो गया ड्यूरिंग दिस पीरियड, 53% ग्रोथ, लेकिन रिटर्न नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि यूएस स्पेसिफिक है, ऐसा निकाय में भी हुआ। निकाय मोटा मोटी समझो 1989 में टॉप मारा था 39,260 का, अभी तक वो टॉप क्रॉस नहीं किया है। तो 32 ईयर्स हो गया, 33 ईयर्स हो गया, अभी तक निकाय का टॉप नहीं लगा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे चाइना में अभी हो रहा है, जैसे काफी मल्टी डिकेड ग्रोथ हुआ चाइना में, लेकिन 2007 का टॉप अभी तक इंडेक्स ने नहीं क्रॉस किया है, जबकि इकोनॉमी 400% ग्रो किया लास्ट 14 ईयर्स। तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो स्टॉक मार्केट कंपनी के जो लिस्टेड कंपनीज है उसका अर्निंग भी ग्रोथ हो या उसका वैल्यूएशन भी ग्रोथ हो। वी कैन गेट स्टक इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर मेनी मेनी ईयर्स, जो जिसके कारण ये जर्नी जितना आसान लगता है उतना आसान, ये जर्नी है सिंपल लेकिन आसान नहीं है। अच्छा, ये जो 20-20 साल 25-25 साल रिटर्न नहीं आता है, उसमें देखो ड्रॉडाउन भी कंसिस्टेंटली हो रहा है 40-45%। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, 115 साल का चार्ट है। इसमें रेगुलरली मार्केट ऊपर से 40-50% घटता है। और एज एन इन्वेस्टर इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू अ कन्विक्शन एंड स्टे इन्वेस्टेड। और जो रहते हैं उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे आप 1929 में आपने अगर देखा तो 1929 में मार्केट ऊपर से 90% गिर गया था। तो ऐसे भी दौर आते हैं, और वो रिकवर भी होता है और न्यू हाई भी मारता है, लेकिन काफी साल वेट करना पड़ सकता है। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग है ना, वो बहुत ही टाइम टेस्टेड मेथड है। मतलब बरसों से लोगों ने जाना हुआ है। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 20-25 ईयर्स ऑफ बुल मार्केट। तो अपने को ऐसा ही लगता है कि भाई मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इवेंचुअली वो ऊपर जाता है, लेकिन इवेंचुअली ऊपर जाने के लिए काफी समय वो साइडवेज या तो डाउन ईयर्स में बिता सकता है। और SIP कर सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ETF कर सकते हैं। ये दिस आर सम ऑफ द वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। तो हम लोग ने एनालाइज किया कि अगर आप ETF करते हो तो लास्ट 10-11 साल में मोटा मोटी आपको 12% एवरेज रिटर्न आया, और वही पीरियड में आपको 39% ड्रॉ डाउन आया। तो ये रेशियो हो गया 0.31, रिटर्न टू ड्रॉ डाउन, रिस्क एडजस्टेड रिस्क, जिसको मैं काल्मर बोलता हूँ, ये हो गया 0.31। अगर आपने म्यूचुअल फंड अप्रोच लिया और अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड को भी चुना, तो भी आपका रिटर्न 18% से ज्यादा नहीं है, और आपका ड्रॉ डाउन है 34%। अगर आप गुड स्टॉक पिकर हो और आप मल्टी बैगर पिक करने की एबिलिटी रखते हो खुद, तो भी आपका रिटर्न 28% के आजू बाजू रहा लास्ट 10 साल में। और ड्यूरिंग दिस पीरियड मार्केट ड्रॉ डाउन 45%। ये तीन अप्रोच, ETF पकड़े या अपन म्यूचुअल फंड अप्रोच पकड़े या डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन पकड़े, तीनों में जो मैं काल्मर रेशियो में हमेशा जो देखता हूँ, काल्मर रेशियो 1 के नीचे है। जैसे निफ्टी बाय एंड होल्ड में 0.31 है, म्यूचुअल फंड में 0.54 है, और पोर्टफोलियो में 0.62 है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप सिस्टमैटिक वे में करते हो तो आपका काल्मर 1 के ऊपर जा सकता है। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। जहां ये CWM मल्टी कैप मोमेंटम ग्लेडिएटर करके हमारा एक स्मॉल केस है, जिसका रेशियो 1.67 है काल्मर रेशियो। तो बहुत ही अच्छा रेशियो बना जाएगा डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। अभी डायरेक्ट इक्विटी में देखो चैलेंजेस कितने हैं। आपको एक तो अपन ये तक यहाँ तक तो समझ लिया कि भाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी में रिटर्न्स ज्यादा है कंपेयर टू ETF और कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में चैलेंजेस भी तो देखिए ना कितना है।
आपको एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ता है, ग्लोबल मैक्रोज, इंडस्ट्री हेडविंड्स, टेलविंड, सेक्टर ट्रेंड, साइक्लिकलिटी, बिजनेस फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म लॉन्जेटिविटी, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब करने के बाद वैल्यूएशन करो, मैनेजमेंट को आप क्वालिटी को आप असेस करो। अगेन मैनेजमेंट क्वालिटी असेस करना एक आम आदमी का काम नहीं है, इट्स एन आर्ट, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट। ये करने के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट करो, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करो, उसको ट्रैक करो, उसका न्यूज क्या आया, व्यूज क्या आया, इन्फॉर्मेशन क्या आया, ओपिनियंस क्या है इसके बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आया है, और अपने प्री डिफाइंड नोशंस भी उसमें बीच में आ जाते हैं एज अ बायर्स। प्लस डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड डिस्क्रिप्शन है। कौन सा इंडस्ट्री लेना, कौन सा सेक्टर लेना, अपना ट्रैकिंग यूनिवर्स कौन सा रखे, विच पर्टिकुलर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 स्टॉक लिस्टेड है या एनएससी में मोटा मोटी 2200 स्टॉक लिस्टेड है, तो इसमें से कौन सा सेक्टर लेना, कौन सा स्टॉक लेना, कभी लेना, कितना लेना, और कब तक खड़े रहना, विनर्स को राइड कब तक करना, कभी आपको स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए। ये सब चीज काफी चैलेंजिंग है फॉर एन आम आदमी। डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड वैलिडेट दोस इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस आल्सो। कोई भी आप अगर हाइपोथेसिस मान के आप इन्वेस्ट करते हो, उसको वैलिडेट करना भी मुश्किल ही होता है। प्लस जायरेशंस होते हैं मार्केट के अपने, उसके लिए इमोशनल टर्मोइल होता है, एनालिसिस पैरालिसिस, इंफॉर्मेशन ओवरडोज, दिस आर द चैलेंजेस ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। प्लस हम लोग ने ये देखा है कि अगर आप टाइम करने जाते हो ना मार्केट को, तो वो तो ज्यादा ही डिफिकल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज टाइमिंग, बट इट्स मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट। ठीक है, आप समझो एक रिपोर्ट आया वेल्स फार्गो का, जिसमें बताया गया कि 1992 से 2000 मतलब मोटा मोटी 30 साल में S&P इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया, बट एवरेज इन्वेस्टर के हाथ में 7.13 आया। क्यों? क्योंकि वो दे ट्राई टू टाइम इट, समटाइम एंटर समटाइम एग्जिट एंड ऑल दैट। टाइम करने गए तो उल्टा लीकेज हो गया, S&P का भी रिटर्न नहीं आया। प्लस हम लोग ने दूसरा एनालिसिस देखा, ये वही वेल्स फार्गो के रिपोर्ट में, कि अगर लास्ट 30 साल में एवरेज रिटर्न 7.82 था S&P का, अगर आप लास्ट 30 साल में उसके खाली बेस्ट 10 दिन खाली 30 साल में आप समझो मोटा मोटी 7,500 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से खाली अगर 10 ट्रेडिंग डेज आप इन्वेस्टेड नहीं हो ना, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो आपका रिटर्न सीधा 5% हो जाता है। अगर 20 में नहीं हो 3.3, 30 में नहीं हो तो 1.6, और अगर 40 में नहीं हो तो 0.3, और अगर आपने 50 दिन मिस कर दिया, जो बेस्ट 7,500 दिन में खाली 50 बेस्ट दिन अगर आप मिस कर देते हैं, तो आपका रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। तो दिस आर वेरी वेरी चैलेंजिंग स्टैटिस्टिक्स। प्लस हम लोगों ने ये पाया कि बेस्ट डेज और वर्स्ट डेज है ना, क्लस्टर में आते हैं। ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई देखो 2000 के क्रैश में देखो बेस्ट दिन भी वही टाइम पे आता है, वर्स्ट दिन भी वही टाइम पे आता है। 2008 में भी ऐसा हुआ, बेस्ट दिन भी क्रैश में आया और वर्स्ट दिन भी क्रैश में आया। अगेन ये रिपीट हुआ कोविड में। ये क्लस्टर में होता है, तो अगर आप बेस्ट वर्स्ट डे अवॉइड करने जाते हो, तो आपका बेस्ट डे भी साथ साथ में अवॉइड हो जाता है। तो ये सब एनालिसिस ये दिखाता है कि भाई टाइमिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग ने ये देखा कि अगर आप वोलेटाइल मार्केट से बाहर रहते हो, तो आपका रिटर्न बेटर हो सकता है। तो ये इट्स एरिया ऑफ रिसर्च, हम लोग भी आगे रिसर्च करेंगे। अगर आपने बेस्ट और वर्स्ट 50 डेज अगर आपने अवॉइड कर लिया, जो क्लस्टर में होते हैं जनरली, तो आपका रिटर्न बेटर हो सकता है 15 से 20%। ये एक एरिया ऑफ रिसर्च है जो हम लोग भी कर रहे हैं, और आगे जाके आप लोग को भी करना चाहिए। ये वॉलेटिलिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक एरिया ऑफ रिसर्च है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आप इक्विटी से निकल के और कोई एसेट क्लास में जा सकते हो। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की। तो ये सब जो चैलेंजेस है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से हम अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहला हम यूनिवर्स ऑफ स्टॉक चूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने चूज किया है कुछ स्मॉल केस में निफ्टी 500 स्टॉक्स, किसी में निफ्टी ऑल कैप स्टॉक 750 स्टॉक, किसी में हम लोग ने सेलेक्ट किया है कि भाई आउट ऑफ 2200 स्टॉक 1500 हम लोग ने हैंड पिक किए कि यही स्टॉक में हम ट्रैकिंग करेंगे। तो स्टॉक्स टू बाई जो सिग्नल के बेस पे होता है, और टाइमिंग ऑफ एंट्री एग्जिट डिसाइडेड बाय द सिस्टम्स, position sizing, risk management, everything is decided by the systems, and it automatically leads to diversification in particular stock, and it does not make or break, a single stock does not make or break the PNL। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेरिट्स है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के।
और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं, वो रूल बेस्ड कैसे हो सकता है, वो भी हम आगे जाके बात कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच लीड्स टू सेक्टर एग्नोस्टिक, मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर सेक्टर को ही हम ट्रैक करें, हम वी आर ट्रैकिंग द एंटायर मार्केट, और सेक्टर एग्नोस्टिक है। तो जो सेक्टर में एक्शन है, प्राइस एक्शन है, मूवमेंट है, वहां अपना इन्वेस्टमेंट होगा, और वहां से अगर एक्शन निकल गया तो वहां से अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड एब्सोल्युटली क्लियर थॉट प्रोसेस है और पीस ऑफ माइंड है इसमें। बेसिकली पूरा हमारा तो सिस्टम है वीकेंड टू वीकेंड वाला ही है। एवरी वीकेंड हम उसको एवेल्यूएट करते हैं एंड पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते हैं, और हमारे स्मॉल केस के जो इन्वेस्टर है उसको ईमेल करते हैं, और उनको खाली एक क्लिक करना है और उनका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक रिबैलेंस हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, और यू कैन चेक आउट द पोर्टफोलियो एट cwsmallcase.com। हम लोग ने कैसे ये चैलेंज, जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो चैलेंज था, वो हमने कैसे सॉल्व किया। वी हैव सॉल्व इट थ्रू प्राइस एक्शन बेस्ड कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ने रूल बेस्ड अप्रोच किया। दिस सिस्टम्स आर डिजाइन्ड in a way that it rides its winners and it cuts its losers. And by leveraging technology, like by partnering with a company like Smallcase, we have leveraged the technology. We have tested our hypothesis through use of codes and computer and analytics, and thousands of stocks have been analyzed over a period of 12 years. And after analyzing all this, we have come out with a robust checks that have been performed and on these rule-based investing systems. Okay, these are the general statistics, back-tested statistics. This is again for education purpose. कि भाई हमारा जो स्मॉल केसेस है इसका ये पास्ट हिस्ट्री का ये स्टैटिस्टिक्स है, और ये अभी लाइव किया है हम लोग ने 22 मार्च 2023 से। अब आपने देखा कि हर एक में कालमर 1 के ऊपर है, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमेशा 1 से ऊपर हो। 6 अलग अलग पोर्टफोलियोज क्यों बनाए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का नीड अलग होता है, रिटर्न रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, प्लस डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग ने ये किया है। अगर ये 6 स्मॉल केसेस अगर कंबाइन करते हैं तो इसका इक्विटी पावर कुछ ऐसा मोटा मोटी बनता है, जिसका कैगर रहा 29% ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 12 years, 32% एनुअल ईयर, और 20% ड्रॉ डाउन रहा, और कालमर रहा 1.5 से। आपको ये खास मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी रिसेंटली 3-4 महीने में रिटर्न आया, वो देख के एक्साइट होकर काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, और अगर भगवान न करे ये मार्केट साइडवेज हो गया और डाउन चला गया तो वेटिंग पीरियड काफी बढ़ सकता है। ऐसा ही पेच हम लोग ने एनकाउंटर किया 2018 से लेके 2020 के मिडिल तक। तो ऐसे कभी कभी 2.5-3 साल देखो इक्विटी का कुछ नहीं कर रहा है, और इन बिटवीन देखो कितना बड़ा ड्रॉडाउन आया, 20% तक ड्रॉडाउन आया, तो फटीग भी होता है। तो इन्वेस्टर को यहाँ ये समझना है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बीच में ऐसे 2, 2.5-3 साल आ सकते हैं। अगर आप यहाँ थक गए और आपने एग्जिट कर लिया, तो आपका जो रिटर्न जो आना था ना, वो पूरा मिस हो सकता है। देखो रिटर्न आया, अगेन इट वेंट साइडवेज फॉर अराउंड 1.5 year, अगेन द रिटर्न्स हैव कम बैक। तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ पैचेस जहां आप साइडवेज कंसोलिडेशन, जहां ड्रॉ डाउन होगा, और आपको ये प्रोसेस से पास होना ही पड़ेगा टू अल्टीमेटली रियलाइज दिस 29% और 32% जो आपको दिख रहा है, वो रियलाइज करने के लिए आपको ये सब पीरियड से निकलना पड़ेगा। अगर ये 6 का 6 स्मॉल केस लास्ट 12 साल में बैक टेस्ट किया, तो उसमें 68% एक्सपोजर रहा, 32% ऑफ टाइम इट इज सिटिंग ऑन कैश। लिक्विड बीज में हम लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, अगर मार्केट मंदी में चला जाता है, स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हम लोग लिक्विड बीज में चला जाता है। दैट इज वेयर द आउट परफॉर्मेंस कम्स। जब हम पूरा जो मंदी होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और लिक्विड में चले जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर सो फार। यू कैन रिस्पॉन्ड ऑन यूट्यूब। अगर सबको समझ में आ गया है तो वी विल मूव टू द एक्चुअल सिस्टम्स। जो आपको मैं रूल बेस्ड सिस्टम जो बताने जा रहा हूँ, वो है CWA2 Sigma. It is given on a public platform for the first time. It is tracking the universe of NSE listed liquid scripts around 1,500, and position size is around 2% of capital. Entry rules. Let us go to the entry rules. मतलब हम लोग बोल रहे हैं सिस्टमैटिक किसको बोल रहे हैं, मैं आपको रूल्स दूंगा, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर समझो सिग्नल आया अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, तो आपको 2% ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करना है। 2% मतलब कैसे, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 2% ऑफ दैट कैपिटल इज 2,000 रुपीज। तो आपको एक स्टॉक में 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो बाय दिस डेफिनेशन योर पोर्टफोलियो कैन हैव 50 स्टॉक्स, ठीक है, 2% ईच। व्हाट आर द एंट्री रूल्स?
वीकली क्लोज अबव अपर बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड काफी लोगों को पता है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। इट इज डेवलप्ड बाय अ लीजेंड कॉल्ड जॉन बॉलिंजर, और उसके काफी वैरायटी ऑफ यूजेस हो सकते हैं। तो वी हैव यूज्ड इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। उसका बॉलिंजर बैंड का सेटिंग रखना है 50 मूविंग एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है 2। अभी काफी लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने ये सिस्टम का नाम CWA 2 सिग्मा क्यों रखा है। 2 सिग्मा इज बेसिकली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जाता है, वीकली क्लोज अबव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 50 वीक मूविंग एवरेज एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव दैट टाइम हमको ये स्टॉक्स लेना है। कितना लेना है? 2% लेना है। बाय दिस डेफिनेशन आपके पास 50 स्टॉक हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। व्हाट आर द एग्जिट रूल्स? कि आपका जो एंट्री प्राइस है, मतलब फ्राइडे क्लोजिंग अगर बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाहर है तो आपको परचेस करना है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सेटिंग। एग्जिट रूल क्या है? इनिशियल स्टॉप लॉस 20%, और एक बार अगर प्राइस आपके फेवर में आ गया तो उसको ट्रेल करना है। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में लिया है तो 80 रुपए आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन समझो मानो 150 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, तो आपको उसको ट्रेल करना है। कैसे ट्रेल करना है? क्लोज बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और क्लोज बिलो एवरेज ट्रू रेंज। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट है जो आपको कुछ वाइडली नोन मार्टिन प्रिंग या अपने जॉन मर्फी, इनकी बुक्स में काफी कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। और फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन डेवलपमेंट ऑफ वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी आपको ये सब कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। जिसको पता है वो यूज कर सकता है, नहीं पता है वो उसका आज से लर्निंग जर्नी चालू हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, बोलिए राकेश। या सो जस्ट टू ऐड राकेश जी, जो अभी आपने बताया, तो आई नो इट्स टू टेक्निकल फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डेफिनेटली ये समझ पा रहे होंगे, और जिनको लगता है कि ये बहुत टेक्निकल है, ऑफ कोर्स आप स्टडी कर सकते हैं ये सब चीजें, और उसके बाद ये सब आप रूल्स मैं फॉलो। अभी इसके बारे में रूल्स के बाद में मैं आपको कुछ चार्ट्स Yes. दिखाऊंगा जिसमें ये बॉलिंजर और बैंड प्लॉटिंग वगैरह है, तो आपको हाँ जी, थोड़ा विजुअली थोड़ा इंप्रूवमेंट यस। होगा, आपको समझ तो में आएगा। आई थिंक जस्ट एक छोटा पॉइंट ये ऐड करना था, व्हाट राकेश जी इज ट्राइंग टू से इज दैट ही इज फॉलोइंग दिस रूल्स। तो अगर किनको लगता है कि नहीं यार हमको ये करना नहीं है, लेकिन ये रूल्स अच्छे लग रहे हैं, they can simply invest in the small case managed by Mr. Rakesh Pujara, because he is following these Definitely. rules in those small cases. That is Yes, yes. just a limited point I wanted to add. Thank you. इनफैक्ट राकेश जी, ये जो रूल्स है उससे काफी बेटर रूल्स हम लोग ने स्मॉल केस में कंबाइन करके डाले हुए हैं, जिसमें रिटर्न भी इससे बेटर आएगा और रिस्क भी इससे कम आएगा। अल्टीमेटली आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको फिश दे दूं, आइडिया ये है कि मैं आपको फिशिंग भी सिखाऊं। अगर किसी को आपको फिश चाहिए तो यस smallcase.com में ही है, CWS smallcase.com, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हो, खुद सीखना चाहते हो, खुद विदाउट स्पेंडिंग मनी, प्रोबेबली दिस आर द रूल्स। ये एक डेमो पर्पस के लिए है कि दिखाया जाता है कि सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है। तो एंट्री रूल्स क्लियर है। वीकली क्लोज अबव अपर बॉलिंजर बैंड 50/2 इज द सेटिंग। एग्जिट रूल 20% इनिशियल स्टॉप लॉस, क्लोज बिलो 100 वीक मूविंग एवरेज और क्लोज बिलो एटीआर। एटीआर का सेटिंग है 14 एटीआर एंड 1.8 टाइम्स, ठीक है। ये काफी क्लियर रूल्स है, उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। ठीक है, ये रूल्स फॉलो करने के बाद हमने काफी ट्रेड्स पाए जो मल्टी बैगर क्रिएट हो गए। ये रूल्स मैंने समझो बैक टेस्टिंग में लगाए, उसमें जो ट्रेड्स आए उसमें कुछ कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। ये रूल्स के कारण हम कौन से ट्रेड ले पाए। एग्जांपल, अगर ये रूल हम फॉलो करते वो टाइम पे, तो 23 अक्टूबर 2020 पे देयर इज कंपनी कॉल्ड सीजी पावर, वो बाय सिग्नल आया ऑन 23 अक्टूबर 2020 एट द रेट ऑफ 25.95। व्हाट इज दिस ब्लू लाइन? दिस ब्लू लाइन इज अपर बॉलिंजर बैंड, ठीक है। अपर बॉलिंजर प्राइस उसके बाहर गया, इसके लिए हम लोग ने परचेस किया। इनिशियल स्टॉप लॉस 20% था, कभी भी ट्रिगर नहीं हुआ।
अभी वो ट्रेल कर रहा है, ट्रेल कर रहा है, ट्रेल कर रहा है, कभी भी ना ये ब्लू लाइन के नीचे गया, ना ये व्हाइट लाइन के नीचे गया, ना रेड लाइन के नीचे गया। व्हाट इज दिस रेड लाइन? दिस रेड लाइन इज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी तक उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, और एज ऑफ यस्टरडे उसका भाव है 412 रुपए, करीबन 1500% ऊपर गया। तो ये सिस्टम हम लोग ने ऐसे डिजाइन किया है कि वो मल्टी बैगर को राइड करेगा, उसको सफिशिएंट टाइम देगा कंसोलिडेट। देखिए ये कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम दिया, लेकिन उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और ये पीछे 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 ट्रेल किया जा रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज आ गया या इसके नीचे क्लोज आ गया तो वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। जबकि लिया था 26 रुपए में, इनिशियल स्टॉप लॉस था 20 रुपीज 76 पैसा। ये विजुअली आपको दिखाने का कारण ये है ताकि आप समझ पाओ कि हम लोग ने बॉलिंजर बैंड में एक्चुअली दो होता है, एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। सिंस ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, लोअर बैंड का कोई मतलब नहीं है, अपर बैंड का ही महत्व है, इसके लिए हमने अपर बैंड ही प्लॉट किया है, लोअर बैंड प्लॉट नहीं किया है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अवंती फीड का, जो करीबन 3291% बनाया ओवर अ पीरियड ऑफ मोटा मोटी 5 क्वार्टर टू 5 ईयर, 5 साल में। उसका सिग्नल आया था लेने का 15 रुपए में, 15 रुपए 20 पैसे में। इनिशियल स्टॉप कभी हुआ ही नहीं, और बाद में वो ट्रेड करते 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 देखो टॉप से कभी कितना गिरा, इतना इतना 30 30 40 40 50 50% गिरा, लेकिन कभी वो उसने अपना रेड लाइन जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसके नीचे नहीं गया। इसके लिए देखो कोई भी मल्टी बैगर को टाइम देना जरूरी है। देखो अगर आपने देखा तो इसने 2015 से लेके 2017 तक कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में देखो कैसा बढ़ा, और बड़ा और वापस ऊपर से गिरा तो देखो यहाँ एग्जिट आया। इस दिन उसने लाइन क्रॉस किया, फिर देखो उसने 15 रुपए की चीज क्या भाव में बेची, 547। तो ऐसी आसान आसान सिस्टम से भी आप मल्टीबैगर फाइंड आउट कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप अननोन कंपनी आती है, इसमें ब्लू चिप लाइक ब्रिटानिया भी कैच किया हुआ है। ब्रिटानिया उन्होंने 2013 में 283 में लिया, और मोटा मोटी 2018 में उसका सेलिंग आया यहाँ पर। तो ये भी 5 साढ़े 5 साल में 1000% रिटर्न आया। तो ऐसी आसान सिस्टम से ऐसा मल्टी बैगर भी मिलता है। एंड लास्ट एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज इंडो काउंट लिमिटेड। जो इंडो काउंट का खाली 3.25 रुपए का भाव था तभी सिग्नल आया था उसको 2013 में, और वो 2016 तक देखो क्या भाव हो गया। 2016 में जब एग्जिट हुआ तभी उसका भाव था 226 रुपीज। सो अगेन 5000%। तो ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड ये सही होगा, लेकिन कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो आपका पीएनएल चेंज करेंगे, और आपका पीएनएल कैगर के आजू बाजू जाएगा। वैसे ही विनाइल करके एक कंपनी है, विनाइल इंडिया, जो 82 रुपीज में बाय आया और 708 तक 8 में वो सेल आया, और करीबन 756%। ये उसका डिटेल बैक टेस्टिंग है 2011 से, कि ये 2011 से अगर ये सिस्टम चलता, ये सब देखिए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई लेने के लिए रिकमेंडेशन है, ना बेचने के लिए रिकमेंडेशन है, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए बैक टेस्टिंग दिखाया गया है कि भाई अगर ये सिस्टम 2011 से चलता। देखो हम तो डेटा में मानते हैं, लाइक वी ट्रस्ट इन गॉड, फॉर एवरीथिंग एल्स वी नीड डेटा। ठीक है, हमको तो डेटा चाहिए। तो हम लोग ने चेक किया कि अगर 2011 से सिस्टम चलता तो उसका कैगर 24% रहता, उसका एवरेज एनुअल रिटर्न 29% रहता, और ड्रॉडाउन होता 38%, और उसका मैक्स डीडी 38% था, और 0.75 उसका कालमर रहता। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा ट्रेड होते, इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। लास्ट मतलब 11-12 साल में खाली 633 ट्रेड्स हुए। एवरेज ट्रेड फॉर मंथ ओनली 4, वो भी 2% कैपिटल, मतलब 8% आपका चर्निंग होता है, ज्यादा नहीं होता है। व्हाट इज द होल्डिंग एज ऑन 20th, अगर आप सिस्टम फॉलो करते, उसका ये करंट पोर्टफोलियो है। करंट पोर्टफोलियो एज ऑन 20th जुलाई 2023। ठीक है, ये उसका करंट पोर्टफोलियो है, जिसमें एस्कॉर्ट्स है, सीजी पावर है जो 1500% ऊपर है, पीजीएल, भारतीय एयरटेल। ये कौन से दिन को ये सिग्नल आया, क्या भाव में आया, और अभी भाव क्या है, और कितना परसेंटेज अप या तो डाउन है, जो भी है, ये उसका करंट पोर्टफोलियो है। ये सब एज पर बैक टेस्टेड रिपोर्ट है। ठीक है, स्लिपेज सेंसिटिविटी हम लोग ने कंसिडर किया कि अगर आप देखो, अब जो भी सिग्नल आया वो भाव से तो स्टॉक आता नहीं है, उसके या तो ऊपर लेना पड़ता है, तो कभी कभी नीचे भी आ जाता है। अगर फ्राइडे को क्लोजिंग में सिग्नल आया लेने का, आपने मंडे मॉर्निंग लिया और आपको 1% स्लिपेज हुआ, तो आपका रिटर्न 24% है, 29% एवरेज एनुअल रिटर्न है। अगर ये स्लिपेज 2% हो गया तो आपका रिटर्न देखो कितना कम हो जाता है। तो स्लिपेज भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप क्या भाव से इम्प्लीमेंट करते हो।
उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ट्रेड को राइटफुली एग्जीक्यूट करना भी इंपॉर्टेंट है, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फाइनल रिटर्न। उसका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहा, बोथ विनर्स एंड लूजर्स में लगे 750। हाउएवर द डिस्टिंक्ट फीचर इज दैट उसका विनिंग का जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है ना, वो 1365 दिन है। 1365 दिन इज मोटा मोटी 5 years, एंड लूजिंग का एवरेज लूजिंग है अराउंड 300 days, मतलब 1 साल के आजू बाजू का लूजिंग ट्रेड हो सकता है एवरेज। और पोर्टफोलियो चर्निंग 8% मिनट, टैक्स एफिशिएंसी है इसमें, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, जो गेन होता है लॉन्ग टर्म होता है। तो आपका ये टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। ये मेरी स्लाइड है जिसमें मेरा डिटेल दिया गया है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ट्विटर और व्हाट्सएप और मेल और यूट्यूब, और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो compoundingwealth.co.in, और स्मॉल केस को सब्सक्राइब कर सकते हो cwa.smallcase.com से। इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन तो एंड होता है, और ओवर टू यू राकेश जी, आपको कुछ पूछना है, जानना है, आपको दर्शकों को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन लेना है यूट्यूब लाइव से, आप ले सकते। So हमने ये YouTube लाइव जाने के पहले राकेश जी, we had floated a form with lot of investors, so we have received lot of questions already, and of course there are some questions on YouTube as well. So just taking a step back, of course पहले ये बताइए आपको कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया सर, एकदम मेरे लिए। आपको लगा ये बहुत डिफिकल्ट है? ऑनेस्टली मैंने अभी तक वो फंडामेंटल बेस्ड अप्रोच ही लिया है, तो फॉर मी इट वाज वेरी वेरी आई ओपनर। मैं वही बोल रहा हूँ राकेश जी कि आम आदमी के लिए फंडामेंटल समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस, मैंने वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की चैलेंज, इसके लिए हम टेक्निकल अप्रोच क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई अपने पास इतना बैंडविड्थ ही नहीं है। आपको दर्जनों के हिसाब से एनालिस्ट चाहिए, आपको हजारों के हिसाब से आपको कंपनी का कौन कॉल सुनना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर। तो यही डिफिकल्टी अवॉइड करने के लिए ये एक रूट है, क्वांटिटेटिव रूट बोलो, टेक्निकल रूट बोलो, प्राइस एक्शन बेस्ड बोलो, ट्रेंड फॉलोइंग बोलो, मोमेंटम बोलो, ये सारे अप्रोचेस है जिससे आप पूरा जर्नी को आसान कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इसी जर्नी का एक क्वेश्चन लेना था मुझे। सो बेसिकली ये हाउ डिड यू कम अप विद दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? आई एम श्योर आपकी भी जर्नी, तो जैसे आपने शुरू में बताया कि जहर अपने सब पी लिया और अमृत यहाँ रखा है, तो व्हाट हैज बीन दैट इन्वेस्टमेंट जर्नी, राइट? देखो, जब कोई भी रिसर्च का आउटकम है ना, जब भी सक्सेस होता है तभी सबको पता चल जाता है, लेकिन वो रिसर्च के पीछे कितना फेलियर होता है वो रिसर्चर को ही पता होता है। कितने पैसे जलाने के बाद सिस्टम बनता है वो हमको ही पता होता है, कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने अप्स एंड डाउन देखे। ये सिस्टम फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, एक निकराज करके इंटरनेशनल ट्रेडर कम इन्वेस्टर है, उनका एक बुक है कॉल्ड अनहोली ग्रेल्स, तो मैंने स्लाइड में उनको क्रेडिट भी दिया हुआ है। तो तभी मैंने ये सिस्टम पढ़ा इसके बारे में कि बॉलिंजर बैंड यूज करके भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड बिलीव मी, दिस जेंटलमैन निक राज इज जनरेटिंग लाइव रिटर्न्स सिंस लास्ट 30 years इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट एट अ रेट ऑफ 29%। तो ये कुछ थियोरेटिकल नहीं है। Sure. हमारा जर्नी अभी चालू हुआ हमने, लेकिन 2016 से मैंने प्रॉप बुक में ये सिस्टम डिप्लॉय किया हुआ था 2016 से, और 2018 से कुछ क्लाइंट्स में हम लोग ने एडवाइस किया है, और अभी तो स्मॉल केस के रूप में ही हम लोग ने सीधा पोर्टफोलियो पे ही रख दिया है cw.smallcase में, और ऐसे ही कुछ अलग अलग कंसेप्ट यूज करके हम लोग ने 6 पोर्टफोलियोज बनाए हैं। Sure. So Rakesh bhai, there is this perception, I'll not say myth or reality, that you will say there is this perception that the moment people talk about technical analysis, the moment we talk about momentum or trend and all that, the first thing which comes to our mind is कि इसमें बहुत ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और सबसे पहला लोगों को यही लगता है यार आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, इतना कौन करेगा एंड ऑल दैट। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हाट हैज बीन द टर्नओवर ऑफ योर स्ट्रेटजी एंड हाउ ऑफन डू यू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो? बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ राकेश जी, बिकॉज मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे भले ही मोमेंटम चल रहा है, ट्रेंड एनालिसिस चल रही है, बट स्क्रीन पे मतलब क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी मोर लाइक एन इन्वेस्टर, बिकॉज आई नो हाउ यू वर्क, but it would be great if you can share your thoughts on that. मैंने अगले सेकंड स्लाइड में सब शेयर किया कि ट्रेड का एवरेज ड्यूरेशन क्या है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड इज 750 days, दैट इज मोर देन 3 years। उसको हम लोग ने फर्दर ब्रेकअप किया, व्हाट इज द एवरेज होल्डिंग ऑफ विनर्स, व्हिच इज अराउंड 1365 days। Got it. अगर आपके पोर्टफोलियो में विनर है तो उसका एवरेज ड्यूरेशन है 5 साल। मतलब ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। बहुत ही आसान रूल से बनाया गया सिस्टम है। थोड़ा भी आप अगर स्क्रैच करोगे ना सरफेस,
तो बॉलिंजर बैंड क्या है आपको पता चल जाएगा, कैसे Yes. इन्वेस्ट करना बहुत आसान यूट्यूब से आपको मिल जाएगा। ऐसे So, अल्टीमेटली देखो राकेश जी, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करे, कुछ भी करे, फैक्ट्री विजिट करे, प्रमोटर से बात करे, कॉन कॉल करे, कुछ भी करे, अल्टीमेटली एक्शन कहाँ होता है? मार्केट में होता है। उसके कारण भाव ऊपर जाता है तो नीचे जाता है। तो हम अगर प्राइस को ही पकड़ के रखे एज ए सिंगल पैरामीटर टू ट्रैक एंड उससे ही कुछ कुछ डिराइव करे सिस्टम। देखिए पूरा सिस्टम प्राइस से ही डिराइव किया है, इसमें वॉल्यूम भी यूज नहीं हुआ है, नो कोई फैंसी इंडिकेटर यूज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपली प्राइस एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब अगर प्राइस कोई भाग रहा है मतलब कोई बाई कर रहा है, तो अगर कोई बाई कर रहा है तो कोई स्मार्ट आदमी है, तो हम उसके पीछे पीछे बाई कर रहे हैं, गलत क्या है? तो ये जो लोगों को लगता है कि बहुत इसमें चर्निंग होता है, ऐसा नहीं है, बहुत ही रिलैक्स सिस्टम है। बिलीव मी, मार्च के बाद बिल्कुल भी चर्न नहीं है, क्योंकि मार्केट वन साइड है, ऊपर है। right. रिबैलेंस हम लोग डालते हैं लेकिन रिबैलेंस होता नहीं है। जो पोर्टफोलियो बन गया है बन गया है। अप्रैल में, जून में कुछ कुछ पोर्टफोलियो में तो जीरो रिबैलेंस आया हुआ है एंड Great. रिटर्न्स भी काफी अच्छे आए, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स भी नहीं। तो पूरे डिस्कशन में एक जो कॉमन थ्रेड था, बार बार ये निकल के आई चीज, दैट इट इज बैक टू बैक डेटा एंड ऑल दैट, बट वी हैव सीन एटलीस्ट विद लॉट ऑफ पीपल वेयर there is some level of human judgment, human biasness which gets into that data also. So are you keeping that room for your judgment के चलो यार 95% या 99% डेटा होगा, लेकिन वो 1%, 2%, 5% जो भी आपका रूल है, is that part of the rule that there will be some human judgment, and in No, that judgment of course there will be some no, there is no weightage to human judgment here. It's okay, completely algorithm driven, system driven, rule based, जिसमें मेरा इंटरफियरेंस जीरो है। एक रूल्स बनाने में बहुत इंटरफियर किया हम लोगों ने, कौन से रूल्स बनाने चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना चाहिए, विनर्स को कैसे होल्ड करना चाहिए, उसके जो रूल्स है ना, उसको बनाने के लिए बहुत डिबेट हुए, बहुत टेस्टिंग हुए, बहुत लाइव टेस्टिंग हुए, बैक टेस्टिंग हुए। लेकिन एक बार रूल बन गए ना, फिर रूल तो रूल है, उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि रिटर्न इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप रूल फॉलो कर रहे हो। जिस दिन रूल तोड़ना सीख गए ना, उस दिन रिटर्न भी डेविएट हो जाएगा। सो एक चीज जो बहुत डिस्कस होती है सभी इवेंट्स में वो है रिटर्न्स, बिकॉज वो भी इन्वेस्टर्स भी वो ही सुनना चाहते हैं। और दो चीज जो मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड है, अंडर डिस्कस्ड है, वो है रिस्क और वो है लिक्विडिटी, विच इज अगेन पार्ट ऑफ रिस्क। सो जस्ट गेटिंग इनटू दैट जोन, राइट, क्योंकि जब अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, बट आई एम श्योर as a platform it's our responsibility towards our users to help them understand that what can go wrong but still not affecting their overall objective, investment objective in the long run, and how they should navigate those challenges. So एक तरीके से मुझे एक एक्सपेक्टेशन सेट करना है, नॉट नेसेसरली मुझे ये बोलना कि इतने रिटर्न्स आ जाएंगे, नहीं। आई थिंक रिटर्न्स तो आउटकम है, बट जर्नी कैसी होगी उसका एक एक्सपेक्टेशन मुझे सेट करना है। जर्नी जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टर को दो हिसाब से प्रिपरेशन करना है। एक हो कि आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है तो उसको आपको देखना है, डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि डाउन नहीं होगा। दूसरा, काफी टाइम ड्रॉ डाउन भी होता है, प्राइस ड्रॉ डाउन तो होता ही होता है, टाइम ड्रॉ डाउन भी काफी होता है, कभी कभी 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल। मैंने काफी स्लाइड दिखाया जिसमें 25-25 साल रिटर्न नहीं। नॉट टू से कि इंडिया में ऐसा होने वाला है, आई थिंक इंडिया इज फार अवे फ्रॉम, एट सम पॉइंट इंडिया विल आल्सो गो थ्रू दैट काइंड ऑफ प्रोसेस। लेकिन ये मान के चले कि बीच में 2-3 साल तो ऐसे आएंगे। इंडिया में भी अगर 2007 का टॉप देखे निफ्टी का या इंडेक्स का, सेंसेक्स का, वो भी 2014 में क्रॉस हुआ, मतलब 7 साल तक ग्राइंडिंग चला। आप ये मान के चले जितना ज्यादा ग्राइंडिंग उतना ज्यादा रिटर्न। तो ग्राइंडिंग में आपको मतलब साक्षी भाव से इन्वेस्टेड रहना है, प्लस एसआईपी करना है। एसआईपी करने से क्या होता है, जब ये नीचे जाता है ना, तभी आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, आपको मोर यूनिट्स आता है, और जब भी थोड़ा भी अप स्विंग आया तो आपको इमीडिएटली आपको उसका फायदा मिल सकता है। तो 3-4-5 साल का व्यू रख के ही इन्वेस्ट करना है। काफी लोग स्टॉक मार्केट को क्विक गेट रिच क्विक, मतलब एकदम फटाफट ओवरनाइट बिलियनर हो जाओ, वैसा इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, वैसा है नहीं। और कुछ लोग होते होंगे, ऑफ कोर्स, गुड लक टू देयर स्किल्स। लेकिन अगर कोई आदमी इन्वेस्टेड रहना चाहता है, अपना सरप्लस इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको लमसम तो करना ही चाहिए, साथ साथ में उसको एसआईपी भी करना चाहिए टू गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म। राइट।
सो आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब दे ही दिया, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि टिपिकली व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर योर स्ट्रेटेजी। सो आपने बता दिया 4 से 5 साल मिनिमम होराइजन रख के ही आना है ये स्ट्रेटेजी में। ये इंडिया के लिए है। यस। इंडिया में एक, अब मैं आपको अभी से 1-2 डिकेड के बाद की बात बता रहा हूँ। इंडिया में जब भी ऐसा ग्रोथ आ जाएगा कि इंडिया का इकोनॉमी 13, 14, 15 ट्रिलियन का हो जाएगा, तभी इंडिया में भी ऐसा पेच आएगा कि जब 10-10 साल तक, 12-12 साल तक, 15-15 साल तक इक्विटी पे रिटर्न नहीं बनेगा। इंडिया अभी मेरे हिसाब से वो स्टेज पे नहीं है, तो इंडिया में मुझे वो रिस्क नहीं लग रहा है। चाइना वो स्टेज पे आ चुका है, यूएस वो स्टेज पे आ चुका है कि जहां हो सकता है कि यहाँ से अगले 5 साल 10 साल रिटर्न नहीं बने। इंडिया में ऐसा सीन नहीं है, तो इंडिया में मेरे को दिक्कत नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स आई रिजर्व माय राइट टू बी रॉन्ग। Of course. I think we all reserve that right. This is to our best of understanding, best of knowledge, and with all the good intent what we are sharing here. Of course, market has its own way of surprising all of us, positively, negatively. When you think about something the least, that is something what happens in the markets, right? So again, taking a step back, again, you have shown a lot of data that अगर ये strategy चलती 2011 से तो ये performance होता वगैरह. So just wanted to understand, because now you have been running this strategy live in your own business, right? Since 2016, you told, right? Almost 2016, 17. So how has your strategy performed, especially in previous market cycles when markets were at all-time high? Because just trying to help investors understand and resonate with the current environment in which we are operating. Because आज अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो ये डर के साथ ये खिंचक है उसको कि यार मैं ऑल टाइम हाई पे एंटर कर रहा हूं. बट आई एम श्योर योर रूल्स टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. बट हाउ if somebody would have entered the market at the so called earlier top of the market, whenever that was, right? ये ऑल टाइम हाई हर 2-4 साल पे हमको ये वर्ड सुनने मिलता है. सो लास्ट ऑल टाइम हाई जो भी था, मतलब आई थिंक इट वाज प्री कोविड और समथिंग. सो हाउ हैज दिस रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी वर्क फॉर यू, for investors who have entered at all time highs? तो अगर आपने गलती से ऑल टाइम हाई पे ले लिया, तो ऑल टाइम हाई कभी हुआ था, समझो 2007 में हुआ था, बाद में 2014 में वो क्रॉस हुआ, उसके पहले हुआ नहीं, बीच में 10-11 में काफी ग्राइंडिंग हुआ, 2009 में जब भी ऊपर का सर्किट लगा तभी जब जाके न्यू हाई आया। तो कभी कभी जैसे दिक्कत क्या है, इन्वेस्टर परफॉर्मेंस आने के बाद ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जब मीडिया हेडलाइन बन जाता है, टीवी पे सब लोग बोलने लगते हैं, अपना पड़ोसी कमाने लगता है, तभी ऐसा लगता है कि आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ये देखो, ये प्रोसेस ऐसा है कि परपेचुअल प्रोसेस है। आपको खाली अच्छे मार्केट में जब भी पड़ोसी कमा रहा है तभी इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसको रेगुलरली, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज when market is consolidated for 2-3 years, 4 years and no returns has been delivered. But unfortunately आपने स्मॉल केस में भी देखा होगा, आपका सब्सक्रिप्शन तभी बढ़ता है जब मार्केट न्यू हाई पे जाता है। जब मार्केट नीचे जा रहा है या ड्रॉ डाउन जा रहा है तभी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई बिलीव नहीं करता है, प्रोसेस में बिलीव नहीं करता है। तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई पे कहीं फंस गए ना, तो हो सकता है कि 3-4-5 साल आपका रिटर्न नहीं आए, लेकिन इवेंचुअली अगर आपने ये पेन सहन कर लिया ना, तो नेक्स्ट साइकिल में आपका आपको एवरेज रिटर्न आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस स्लाइड में ये दिखाया कि अगर आप 50 दिन मिस कर देते हो ना, आउट ऑफ 7,500 डेज, तो आपका रिटर्न 0 है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का प्री कंडीशन है परपेचुअल इन्वेस्टेड रहना है। उसको हम लोग ने थोड़ा अवॉइड कैसे किया, बाय पुटिंग स्टॉप लॉसेस है, बाय गोइंग इनटू लिक्विड। लेकिन लिक्विड में जाके फिर डर के बैठना नहीं है। अगर सिग्नल आता है, भले माहौल सही नहीं है, लेकिन लेने का सिग्नल आता है तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। तो ये प्रोसेस ड्रिवन करने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है मेरे हिसाब से, कि आपको जो टाइमिंग करने का इशू है या खराब मार्केट में डर लगता है, तभी जब भी रैली चालू होता है ना, जैसे कोविड की बॉटम से रैली चालू हुआ, तभी कभी कोई मीडिया में डिस्कस नहीं होता है। जब ये रैली एक अच्छा पकड़ लेता है, ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, तभी एकदम डिस्कशन होता है, तब लोगों को पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली तब तक मोस्ट ऑफ द गेन्स हो चुका होता है, तब तक वो 50 दिन हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेस्ट ऑफ 50 डेज हो चुके होते हैं। फिर देन यू, इसके कारण जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है टू इक्विटी इन्वेस्टिंग, वो जियोपार्डाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स, नॉट बिकॉज इक्विटी रिटर्न नहीं देता है, बिकॉज वी अप्रोच इट इन अ रॉन्ग फैशन। राइट। सो
अगेन ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट जितना मुझे अभी तक समझ में आया आपका प्रेजेंटेशन और आपका डिस्कशन, तो ये क्वेश्चन का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, राइट? आपके रूल बेस में कि मार्केट क्या लगता है, राइट? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। मैं नाउअडेज आई एम स्ट्रगलिंग। कोई मुझे बोलता है ना कौन सा स्टॉक लेना, मतलब लेट मी सी माय स्मॉल केस पोर्टफोलियो, उसमें क्या है, आई डोंट नो, आई राइट। रियली डोंट नो। पहले मैं स्क्रीन को मैं स्टेयर किया करता था टू ट्रैक द, काफी काफी स्कैन रहा करते थे मेरे टेबल पे, जिसमें वो कौन सा स्टॉक चल रहा है, कहाँ वहाँ वॉल्यूम हो रहा है, कहाँ बल्क डील हो रहा है, कहाँ एक्शन है अभी। बिलीव मी, it has relieved me from all this and I'm able to focus on some better things। ऑप्शंस के स्पेस में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट पे काफी टाइम मिल रहा है। मतलब मेरे पास कुछ मार्केट का व्यू लेने को, मेरा कभी इंटरेक्शन हुआ था कि शायद आपसे ही हुआ था, नहीं अपना ट्विटर स्पेसिस हुआ था, राइट? मार्केट आउटलुक, एक्चुअली मेरे को मार्केट आउटलुक निकालने के लिए मुझे 2 दिन लगे। आई टू लुक बैक द डेटा, ये सब देखना पड़ा कि आउटलुक क्या लगता है। तो इतना आसान हो जाता है कि आपको क्रिस्टल बॉल गेजिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता है। Got it. Now, this rule-based, Rakesh bhai, we keep on hearing from a lot of fund managers. Of course, we have a couple of them on our platform also, and a lot of, I think, large money is also now getting deployed in the markets via rule-based investing, via algos, via artificial intelligence and all that. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीजें ऑप्टिमाइज होती जाएगी, जैसे आज आपने जो रूल्स बनाए हैं, जी वो रूल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कोई रूल बना होगा? बिकॉज इफ यू आर बाइंग समथिंग, देयर इज अ सेलर, राइट? अगर वो सेलर भी रूल वाला है, तो ऐसा कौन सा वो रूल फॉलो कर रहा है जो उसको सेल सिग्नल आ रहा है और आपके रूल को बाई सिग्नल आ रहा है? Yeah, your concerns are valid, but we are quite early in the stage। तो अभी ये स्पेस ओवरक्राउड नहीं हुआ है। ओके। लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म इज देयर कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा। देखो, ये जिस दिन सब लोग कन्विंस हो जाएगा ना ये चलता है, तभी वो चलना बंद होगा, उसके पहले तो नहीं। अभी तो लोग कन्विंस नहीं है। अभी लोग काफी बोलेंगे क्या यार ये बॉलिंजर की बैंड की बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दैट इज गुड। जब तक ऐसा रिस्पॉन्स आएगा ना, तब तक रिटर्न आएगा। हाँ, जब तक मेरे इतने सवाल आ रहे हैं तब तक तो रिटर्न आएगा। जब तक सिनिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पेस बहुत बड़ा है। आप लॉन्ग ओनली का एयूएम देखे तो 10-20 लाख करोड़ के ऊपर होगा, जो भी होगा नंबर, आई डोंट ट्रैक दोस नंबर्स। राइट। few hundreds or few thousands are deployed rule based way, particularly technical aspect या quant aspect या momentum aspect। मतलब हो सकता है 2000 5,000 करोड़ इन्वेस्टेड होगा आउट ऑफ एयूएम ऑफ 20 लाख करोड़ और 25 लाख करोड़ जो लॉन्ग ओनली एयूएम है। मतलब दिस आर वेरी वेरी अर्ली डेज। बिलीव मी, दिस विल गेट सो मच पॉपुलर in 5 years down the line, 10 years down the line। that is where you should ask this question, will it stop working now? अभी तो जस्ट बिगिन अर्ली डेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम अभी सुना है, एमएल का नाम सुना है, अभी लोग एक्चुअली खाली करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ये सैचुरेट होगा, क्राउडेड होगा, एवरीबडी विल गेट कन्विंस कि यही करना चाहिए, तभी जाके रिटर्न आना बंद होगा। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। गॉट इट। Again, a lot of investors, they feel they don't have enough money to put in the markets, and that is where they get lured by the leverage, right? So just wanted to know from your experience. I know there are some people who will always say, boss, it has worked for them, but they are very few and people try to ape them and usko rule bana lete, right? So just wanted to understand your perspective on the use of leverage in investment portfolios. आज कोई अगर small case subscribe करता है, what will be your advice or thoughts on the use of leverage in that investment portfolio? देखो, यूज ऑफ सम लिवरेज इज नॉट ऑल दैट बैड, बट लिवरेज इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। आपको रिटर्न तो एनहांस कर देता है, लेकिन जब रिस्क आता है ना, रिस्क भी उतना लिवरेज ही आता है, तो आपका कैपिटल भी वाइप ऑफ हो सकता है। तो अगर जब मैं इनिशियली, आप है ना, लिवरेज करिए एजुकेशन, डोंट लिवरेज मनी। आप अंडरस्टैंडिंग को, मैंने काफी प्रेजेंटेशन में नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज में प्रेजेंटेशन देता हूँ, जिससे आप कैसे लिवरेज करके रिटर्न कमा सकते हैं और आपका रिस्क लिमिटेड रह सकता है। ये पॉसिबल है, लेकिन दिस इज फॉर द एक्सपर्ट्स, दिस आर नॉट फॉर न्यू कमर्स। और जो समझ में नहीं आता है उनको लिवरेज में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो डिस्पोजेबल सरप्लस है उसको इन्वेस्ट करिए। अगर आप ये गेम को फुल टाइम में, इन्वेस्टमेंट गेम में आते हैं, तो समझ के आइए, स्पेंड सम इनिशियल टाइम स्टडिंग ऑन पेपर के लिवरेज का क्या इफेक्ट है। क्योंकि लिवरेज इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड और बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और विदाउट कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। तो आई वुड एडवाइज, स्मॉल कैप प्लेटफॉर्म में काफी मतलब न्यूबीज भी है और काफी लो कैपिटल इन्वेस्टेड लोग भी है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि पहले स्टडी और
उसमें लिवरेज करिए, आप नॉलेज में लिवरेज करिए, पैसे से लिवरेज इनिशियली नहीं करना चाहिए. वंस यू कॉन्फिडेंट, यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग लिवरेज 1.1, 1.2, 1.5, then go to 2. Like in options, we leverage up to 6-7 times also, but we know what we are doing, what can go wrong, कितना पैसा लग सकता है, वो सब हमको कैलकुलेशन होता है. देखो, आउटसाइड रिटर्न हमेशा लिवरेज से आता है. तो आई एम नॉट अगेंस्ट लिवरेज, बट आई एम अगेंस्ट यूज ऑफ लिवरेज विदाउट नॉलेज. तो दिस इज व्हाट माय टेक ऑन द लिवरेज. Got it. So again, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिटेलिंग में. So there is a user called Gamma Junior. Do you think this is a good time to put money here, since you just mentioned that it will remain sideways and market has already run up so much? No, I'm not sure it will remain silent. I think that personally, I believe there is a lot of juice in the Indian market. It might go through correction and all that. So I can never find a good time कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए. लेकिन मोमेंटम इतना है कि भाई शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न आ सकता है. जैसे रिटर्न आया था 2006 से लेके 2007 के बीच में, जो रिटर्न आया था स्टुपेंडस रिटर्न. 2006 में ऐसा लगा कि भाई मार्केट बहुत चल गया. 7 में भी ऐसा लगा. 7 में तो क्राइसिस चालू हो गया था यूएस पे जुलाई में. जुलाई 2000, अगर आप मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी का क्राइसिस देखें तो फर्स्ट डिफॉल्ट हुआ था डीएसपी मैरिल लिंच का कुछ $800 मिलियन. वो जुलाई 2007 में हुआ था. बाद में वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स, अक्टूबर से दिसंबर, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स ऑफ स्मॉल कैप मिड कैप आया था. तो ब्लो आउट रैली मेरे हिसाब से बाकी है अभी भी कुछ. मेरे हिसाब से अगर 2.5 ईयर का होराइजन देखे तो कुछ भी रिटर्न बने नहीं है. बेयरली पॉजिटिव है लास्ट 2.5 ईयर्स. थोड़ा 5-10% बना होगा. मार्च से ऑफकोर्स बॉटम से ज्यादा आया, लेकिन ऊपर से घटा भी. तो लास्ट 2-2.5-3 साल में ज्यादा कुछ रिटर्न बने नहीं है. तो मेजर रिटर्न बनना मेरे हिसाब से बाकी है. और जो अभी स्ट्रीम बना है वो स्ट्रीम जल्दी से निकलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. आई रिजर्व माय राइट टू बी रॉन्ग. कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपना ओपिनियन दिया. Got it. So again, the flavor of the last few months has been small cap. Again, with a very, very hindsight bias, everybody feels that बहुत ज्यादा चल गए हैं, बहुत ज्यादा रन अप हो गए हैं. I think this is a very standard question which comes to us from lot of investors, because करना भी है, लेकिन वो एंजाइटी भी बहुत होती है कि यार हम चढ़े और खत्म नहीं हो जा रही. बट there is another angle to it, that small caps have never performed like since last 4-5 years now, and they are just about to inch to those levels at an index level and all that. So as I told, yeah, so just wanted to understand again, in one of your slide you said that your rules are not about sectors or market caps and all that, but if you take a very granular view about this particular universe, इसमें कहीं कोई अलग trends आपको दिख रहे हैं कुछ this time again? मैं एक बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूँ. देयर इज अ चार्ट कॉल्ड रेशियो चार्ट व्हिच इज अ रेशियो बिटवीन स्मॉल कैप एंड निफ्टी. ठीक है. तो वहां पे अब भी रिकवरी चालू हुआ है. फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स इट वाज अंडर परफॉर्मिंग. नाउ देयर इज सम रिलेटिव स्ट्रेंथ इन स्मॉल कैप इंडेक्स कंपेयर्ड टू निफ्टी. एंड बिलीव मी, अभी रिटर्न्स आए ही नहीं है. अभी आपने देखा ही नहीं है रिटर्न्स ऐसा मुझे लगता है. तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप, अभी मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखा कि काफी स्मॉल कैप मिड कैप के रिजल्ट्स लार्ज कैप से बेटर आ रहे हैं. तो जब भी अर्निंग साइकिल चालू होता है ना, जब भी जीडीपी बेटर रहता है, इन्फ्लेशन अभी सेटल हो गया है, तो नॉमिनल ग्रोथ भी ज्यादा आएगा. तभी स्मॉल कैप, जब भी एक्सपांशनरी साइकिल होता है, तभी स्मॉल कैप मिड कैप का अर्निंग्स काफी ज्यादा, क्योंकि बेस बहुत लो है. तो परसेंटेज अभी 100 रुपए में कुछ डबल होने को 100 रुपया चाहिए. ठीक है. लेकिन 5 रुपए में डबल होने के लिए 5 रुपए ही चाहिए. तो बेस बहुत लो है. तो अर्निंग साइकिल चालू हुआ है. मुझे लगता है ये साइकिल सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा. एंड जो लास्ट 9-10 सालों में काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, या जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के लेवल पे, या जीएसटी का रिफॉर्म्स हुआ, काफी कुछ हुआ, काफी फॉर्मलाइजेशन हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ. तो उसका बेनिफिट सब अभी जो फॉर्मलाइज हो गया, जो लिस्टेड स्पेस में है, उनको आना है. प्लस कोविड के बाद चाइना +1 जो चला है ना सर, काफी, मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट्रियां है ना थक जाएगी प्रोड्यूस करते करते, माल सप्लाई करते करते थक गई. अगर चाइना का 5 या 10% भी डाइवर्ट हो गया ना इंडिया में प्रोडक्शन, तो अगले 10-20 साल आप वारे नहीं आ रहे, मैं बता रहा हूँ. तो ये स्मॉल कैप मिड कैप का रैली चल सकता है. बीच बीच में करेक्शन आएंगे. इसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए इन्वेस्टेड रहना है, इसके लिए SIP करना है. आप अगले 10 या 20 साल में बहुत
बड़ा पैसा बनाने वाले हैं by being invested in the stock market. You are on mute, sir. सो जब इन्वेस्टमेंट की बात चली गई है राकेश जी, तो आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट, वन ऑफ आवर यूजर हैव रिक्वेस्टेड, यू हैव अराउंड 5 to 6 स्मॉल केसेस, Yeah. राइट? सो एक यूजर का हमेशा एक ये डिलेमा रहता है कि एक तो स्मॉल केस है, बहुत अच्छा है, पीपल आर बिग फैन ऑफ स्मॉल केस when it comes to the product itself, when it comes to the execution capabilities of the platform and all that, but कहीं ना कहीं वो एक डिलेमा रहता है कि कौन सा स्मॉल केस सब्सक्राइब करना है. Now, because we are with you, of course, we will restrict this discussion about your small case. Yes. So just wanted to understand if you can just share your screen and just open your cwa.smallcase.com and make people understand that which small case is meant for what kind of persona. And एक one line में एक expectation setting हो जाए तो at least people will have a clarity कि हाँ यार, this is one, because I see a couple of your subscribers also who have joined YouTube and they are your very early adopters of Everest 10 also, and they are very happy. Yes. They gave a lot of wishes also, but Yes, yes, lot of investors they get confused कि यार 6 है, अभी इसमें से क्या करना है. नहीं तो मैं बेसिकली आई शेयर माय दिस थिंग. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सर आपको? यस यस, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. तो एक CWA स्मॉल केस की साइट पे जाएंगे अपन. CWA डॉट स्मॉल केस की साइट पे जाएंगे. CWA डॉट. So just to add a small piece of info, this is a website of cwa.smallcase.com. यहाँ आपको सभी CWA के स्मॉल केसेस, आप जैसे ही मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, हाँ जी, आपको दिखेगा सी पोर्टफोलियोज करके ऑप्शन आएगा. ठीक है, ये कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर मेरी कंपनी का नाम है. यहाँ सी पोर्टफोलियोज आपने किया तो CW एवरेस्ट 10 जो हमारा टॉप परफॉर्मिंग अभी तक का है ना, वो 37.5% अप है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये है और मोटा मोटी 1000 रुपया महीने के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन लगता है उसका. सेकंड बेस्ट हमारा है CWA ऑल कैप 35, ये वाला, जिसने 31% रिटर्न डिलीवर किया है. एंड द थर्ड बेस्ट इज CWA मल्टी कैप मोमेंटम. तो अगर किसी को एक ही लेना है तो मल्टी कैप मोमेंटम या तो ऑल कैप ले सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं हमेशा मैंने खुद ने 5 लिए हुए हैं, अदर देन लार्ज कैप मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रैली स्मॉल कैप मिड कैप में आने वाला है, तो मैंने ऑल 5 लिए हुए हैं. लेकिन अगर आपको एक ही लेना है तो आप मल्टी कैप मोमेंटम या तो ऑल कैप 35 ले सकते हैं, और अगर 3 लेना है तो एवरेस्ट 10, मल्टी कैप मोमेंटम ग्लैडिएटर ये वाला, और तीसरा मल्टी कैप ऑल कैप 35 ले सकते हैं. तो इसमें ओवरलैप भी रहेगा क्या राकेश जी? जैसे एवरेज 10 है और देखो ओवरलैप का फायदा भी रहेगा. क्यों, कैसे फायदा रहेगा? मैं एक आपको नाम शेयर करता हूँ. JBA में, ठीक है, JBA में हमारा 6 में से 3 पोर्टफोलियो में आया. एक में आया जब 432 का भाव था, दूसरे में आया जब 532 का भाव था, तीसरे में आया जब 632 का भाव था. तो तीनों में आया, लेकिन अलग अलग भाव पे आया, क्योंकि हर एक एंट्री क्राइटेरिया अलग है, एग्जिट क्राइटेरिया अलग है. एंड उसका फायदा क्या हुआ कि ये पिरामिड हो गया, पिरामिड 1 पिरामिड 2 हो गया. और JBA में का अभी करंट भाव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 2300 का भाव है. तो ये कभी कभी भले नाम रिपीट हो जाते हैं, लेकिन पिरामिड का फायदा होता है. पिरामिड करने से रिटर्न एनहांस होता है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो फ्री होता है और दूसरा पोर्टफोलियो फुल होता है, और नया सिग्नल आता है तो ये पोर्टफोलियो नहीं लेता है क्योंकि फुल है, लेकिन ये खाली है तो ले लेता है. तो हम लोग ने एक गेटवे ऐसे बनाया है कि कुछ भी मल्टीबैगर हो तो अपने स्मॉल केस के थ्रू जाना चाहिए. गॉट इट. इसके लिए दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव केप्ट 5-6, सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी. प्लस ये 6 को 6 कंबाइन करने का फायदा ये है कि हमारा एवरेज ड्रॉडाउन जो 24% था वो कम होकर 20 हो सकता है. तो कहीं ना कहीं हर एक का एंट्री क्राइटेरिया अलग, एग्जिट क्राइटेरिया अलग, तो ड्रॉडाउन में भी फायदा होता है और रिटर्न ऑन एन एवरेज ये आजू बाजू आ जाता है. So great. I think Rakesh ji, we have already surpassed our time. 8 बज गए हैं. So I would just request you to give some closing remarks. I'm sure काफी हमने डिस्कस किया है और काफी टेकअवेज है. इसके हम क्लोजिंग रिमार्क मेरा यही है कि डू Yes. नॉट ट्राई एंड टाइम द एंट्री ऑल द टाइम. आप देखो, यहां से मार्केट पहले 25,000 होगा या पहले 16,000 होगा, कोई नहीं जानता है. At some point you have to take an entry. You have to take an entry with unemotional capital and gradually धीरे धीरे उसको ऐसा साइजेबल बनाइए.
जैसे मैं तो अपने स्टाफ है, अपने जो भी एम्प्लॉई है उनको भी एनकरेज करता हूँ, और बिलीव मी, जिन्होंने स्मॉल केस लिया है मार्च में सब लोग अभी खुश है। दे अंडरस्टूड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि भाई ये कंपाउंड कैसे होता है, रिटर्न कैसे आता है। अभी 4 महीने में अगर 35% मतलब 5 साल का एफडी का रिटर्न बन सकता है, लेकिन ये पीरियड आया 2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद। तो अगर कोई किसी ने 3 साल पहले लिया होता तो वो थकता, और या शायद ये 4 महीने में हाजिर नहीं होता। तो अपने को थिक एंड थीन में अपने को हाजिर रहना है, इक्विटी के पावर में बिलीव करना है। आपको जो भी व्हीकल पसंद हो, भले म्यूचुअल फंड पसंद हो, ETF पसंद हो, डायरेक्ट अगर आप खुद इक्विटी करना चाहते हो खुद करिए। रूल बेस करना है, मैंने आपको सिस्टम दे दिया, उसका भी 24% रिटर्न बैक टेस्ट में है, खुद करिए तो भी आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में करना है तो इट इज बीइंग बेटर टू हैंड ओवर टू द प्रोफेशनल्स एंड गो थ्रू प्रोफेशनल साइट्स लाइक स्मॉल केस। तो आपको वहाँ वैरायटी भी मिलेगा, आपको वहाँ अच्छे मैनेजर्स काफी मिलेंगे, और आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, बीच में डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा। Got it. Great. I think this is just what I wanted to share. So thanks a lot, everybody, for tuning in. And of course, the recording will always be available. And just a last thing from my side, what Rakesh bhai just added. There is one thing which is strategy and one thing is execution, right? So Right. advice is nothing if you can't execute it right. And I think small case is just trying to do that in the best possible manner, where with a single click, you can execute such complex strategies, what Rakesh bhai has just shared with us, with a single click, right? Plus, you have all the benefits of your normal investment processes, like you can do top-ups, you can do SIPs, you can do a partial exit, you can do a full exit, and everything at a click of a button, right? I think that is something what we have tried to bring on the platform, a seamless experience, having the best of best advisors and having the best of best brokers. And as a client, you get best of all the worlds on our platform. So with this, thanks once again, Rakeshji, for spending so much valuable time of yours. And we will stay in touch, and we'll keep on doing much more engagements like this with all our investors in future as well. And all investors, please stay tuned for the next series. Maybe next week we'll come up with some other manager again with some interesting strategy. Of course, everybody will have their own strategies. It's as an investor, we will have to align what aligns with your persona the best, right? As Rakesh bhai just mentioned, it's all about the behavior and your response to your strategy, right? So strategy is just one thing. I think it will be your behavior which will eventually define your success or failure. And that is where we are trying to bring various types of strategies in front of you. And of course, you can select the best which you feel the best, and you feel that, yes, this is something I'm connecting with, right? So with that, thanks a lot, Rakeshji. And thanks a lot, Rakesh. yeah, Thanks for having me. yeah, thank you. Good night. See you, audience.